میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں مگر اللہ جو سب سے بلند اور سب سے عظیم ہے کے ساتھ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہوں انبیاء و مرسلین میں سب سے افضل رب العالمین کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک اہل بیت پر۔ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ باپ، بیٹے اور روح قدس کے نام کر، آمین۔ آج رات ایک بار پھر آخرت کے حوالے سے 2 نکات پیش کرنا چاہوں گا۔ یقیناً وہ بحث رحم، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کا جوہر مادی دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ یہ دنیا اور فطرت سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ آخرت تصویروں کی دنیا ہے، آپ کے اپنے ذاتی خیال کی دنیا ہے۔ وہاں جسم ہے، مقدار ہے اور حجم ہے، لیکن بالکل بھی کوئی مادی عنصر موجود نہیں ہے۔ اس کا کوئی وزن نہیں ہے، کسی جگہ کو گھیرتا نہیں ہے۔ وہاں کوئی رگڑ نہیں، کوئی مزاحمت نہیں، اور اس نوعیت کی دیگر جسمانی خصوصیات بھی نہیں ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ یہ دنیا مکمل طور پر انسان کے اپنے تخیل کے دائرے میں موجود ہے، اور انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، اس کی جو بھی مخصوص عادات ہوں، جو بھی عقائد ہوں یا جو بھی ارادے ہوں، یہ سب بنیادی طور پر انسان کی وسیع تخیلاتی صلاحیت سے تشکیل پاتے اور اسی کے تابع ہوتے ہیں۔ یہی وہ جہت ہے، یہی تخیل کی دنیایں خود صورتیں اختیار کر لیتی ہیں، اور پھر جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو انہی صورتوں میں زندگی گزارتا ہے۔ یقیناً اس انتقال کے بارے میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ مثال کے طور پر جب انسان اس مادی دنیا سے اس دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے تو یہ کوئی سادہ سا مکانی انتقال نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اچانک یہاں سے اٹھا کر کسی اور مادی جگہ پر پہنچا دیا جائے، نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ موت دراصل انسان کا مادی جہت سے نکل کر تخیل کی وسیع جہت میں داخل ہونا ہے۔ دیکھیں، مثال کے طور پر ابھی اگر آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے ذہن میں جاندار تصویریں بنانا شروع کریں، جیسے کہ ایک سرسبز ندی جس کے کنارے خوبصورت درخت ہیں، بہتا ہوا پانی، اونچے پہاڑ، وسیع میدان اور سفید بادل جو گزر رہے ہیں، تو آپ اسی فضا میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر کے یہ سب کچھ تصور کریں تو آپ آخرت کی دنیا میں منتقل ہو چکے ہیں۔ یہی اصل میں آخرت ہے۔ ہر چیز ایک مثال بن جاتی ہے، یعنی تخیل کی دنیا۔ یہی وہ قسم کا انتقال ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ انتقال سے مراد یہ ہے کہ انسان کی حسیات کام کرنا بند کر دیتی ہیں۔ یعنی آپ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ کوشش کریں کہ آپ ایسے ماحول میں ہوں جہاں کوئی آواز سنائی نہ دے، ایسی جگہ پر ہوں جہاں نہ ہوا ٹھنڈی ہو نہ گرم، تاکہ آپ کی چھونے کی حس متاثر نہ ہو۔ مثلاً وہاں کوئی خوشبو بھی نہ ہو تاکہ آپ کی سونگنے کی حس بھی بالکل متحرک نہ ہو۔ یعنی آپ کی دیکھنے کی حس کام نہیں کر رہی کیونکہ آنکھیں بند ہیں، آپ کی سننے کی حس بھی کام نہیں کر رہی کیونکہ کوئی آواز نہیں ہے، آپ کی سونگنے کی حس بھی کام نہیں کر رہی کیونکہ کوئی خوشبو نہیں ہے، آپ کی چھونے کی حس بھی کام نہیں کر رہی کیونکہ نہ ٹھنڈک ہے نہ گرمی، بالکل کچھ نہیں، آپ کی تمام حسیات رک گئی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس آپ اپنے اندر تصویریں بنا رہے ہیں۔ کیا یہی انتقال کا مطلب ہے؟ موت بس آپ کی بیرونی حسیات کے بند ہو جانے کا نام ہے۔ بند ہو جانا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیند موت کی بہن ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔
तो इस दुनिया से अगली दुनिया में मुंतकिल होना बिल्कुल यही है कि आपकी बैरूनी हिस्सियात काम करना बंद कर देती हैं। जब ये हिस्सियात बंद हो जाती हैं तो आपकी तखयलाती हिस्स फाल हो जाती है। कहाँ से? यकीनन बात यह है कि अभी मिसाल के तौर पर जब मैं जाग रहा हूं और अपनी आंखें और कान बंद करने की कोशिश करता हूं, तब भी मैं अपनी तखय्युल की दुनिया में गहराई तक नहीं जा सकता। या मिसाल के तौर पर जब कोई शख्स सो रहा होता है तो वो भी उन गहराइयों में नहीं जा सकता, क्योंकि अभी भी उस दुनिया की तरफ कुछ ना कुछ तवज्जो बाकी होती है। रूह अभी भी इस जिस्म की तरफ मुतवज्जे रहती है। नींद में भी रूह को तवज्जो देनी पड़ती है। दिल धड़कता रहता है, फेफड़े सांस लेते हैं, खून गर्दिश कर रहा होता है, तो रूह अभी भी जिस्म को संभाल रही होती है। इसीलिए रूह का ताल्लुक मुकम्मल तौर पर मुनक़ते नहीं होता। रूह को अब इस दुनिया का कोई अमूमी इदराक नहीं रहता, और हम खुद भी तखय्युल की इस दुनिया की उन गहराइयों तक नहीं पहुंच सकते। जब मौत वाक़ होती है तो यही काम मलकुल मौत करता है, यानी उमूमी तौर पर हवास रूह के जिस्म से ताल्लुक को मुकम्मल तौर पर काट देते हैं। वो ताल्लुक मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाता है ताकि रूह का जिस्म से कोई रब्त या वाबस्तगी बाकी न रहे। इस मकाम पर दिल भी काम करना छोड़ देता है, जब न दिमाग काम करता है, न खून का बहाव, न फेफड़े काम करते हैं, कुछ भी नहीं। ये मौत की हकीकत है, ये है मुंतकली की हकीकत। इसलिए मौत का मतलब तमाम इंसानी इदराक खवास का मुकम्मल मुअत्तल होना है। अलबत्ता यहां मजीद बहस बाकी है। बरज़ख में क्या है? इंटरमीडिएट दुनिया। इंशाल्लाह हम आपको इन मामलात की मजीद वजाहत करेंगे। हमें यह नोट करना चाहिए कि मौत के लम्हे पर भी अगरचे रूह का जिस्म से ताल्लुक मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो जाता है, लेकिन बहुत से लोगों का दुनिया से लगाव अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होता। यानी अगरचे उनका जिस्म से ताल्लुक ख़त्म हो चुका है और जिस्म दफन हो चुका है, फिर भी रूह की तवज्जो दुनिया की तरफ बाकी रहती है। ये लोग बरज़ख में हैं, वो अभी भी उसी हालत में हैं। मिसाल के तौर पर वो कुरान पढ़ते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, इस बात पर तवज्जो देते हैं कि मैं यहाँ हूँ या नहीं। ये लोग अभी तक इस दुनिया से जुड़े हुए हैं। अगर वो देखें कि उनके ख़ानदान के लिए कोई मसला पैदा हो गया है तो वो परेशान हो जाते हैं। अगर वो देखें कि उनके लिए खुद खुशी आई है तो ये लोग अभी तक वाबस्ता हैं, ताल्लुक अभी तक मुनक़ता नहीं हुआ। उन्होंने अभी तक इस दुनिया से अपना ताल्लुक मुकम्मल तौर पर नहीं तोड़ा, इसलिए ये दुनिया उनके लिए बरज़ख बन जाती है। बरज़ख कोई दरमियानी वाबस्तगी नहीं है, ये इस दुनिया और क़यामत के दिन के दरमियान है, इंसान के सफ़र में आलम ख़याल की गहराइयों की तरफ। जहाँ उसका हश्र होता है, उसकी जन्नत वहीं है, उसका जहन्नुम वहीं है। क्योंकि देखें, अगरचे मैं आपको बता रहा हूँ कि इंसान का हश्र, जन्नत और जहन्नम सब कुछ उसके बातनी आलम ख़याल में है, लेकिन इंसान के इस मकाम तक पहुँचने के लिए अभी बहुत लंबा सफ़र बाकी है। जब इंसान अपने जिस्म से ताल्लुक़ तोड़ लेता है तो भी उसने अभी तक इस दुनिया से अपना ताल्लुक मुकम्मल तौर पर नहीं तोड़ा होता। उनकी तवज्जो का एक हिस्सा अभी भी यही है, उनकी आगाही का एक हिस्सा भी। वो कुछ बातनी हकीकतें देखते हैं, वो उन सूरतों में से कुछ को देखते हैं जो उनकी रूह ने तख्लीक की हैं, लेकिन ना तो मुकम्मल तौर पर और ना ही पूरी तरह से। उसी को बरज़खी जहन्नम या बरज़खी जन्नत कहा जाता है। फिर जब जिस्म से मुकम्मल तौर पर ताल्लुक ख़त्म हो जाता है, जब रूह इस जिस्म से पूरी तरह जुदा हो जाती है और इस दुनिया से उसका कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहता, तब भी यह फ़ौरन सीधा मसलन उस आखिरी हालत तक नहीं पहुंचती। फिर उसी जगह को मवाक़िफ़ कहा जाता है, जो एक तरह का ठहराव है, बरज़खी आलम और जहन्नम की क़यामत से पहले का एक मकाम। मवाक़े में वो कुछ चीज़ें देखते हैं, वो सिरात यानी पुल देखते हैं, आमाल के तराजू देखते हैं, और वो वाक़यात जो मवाक़िफ़ में पेश आते हैं। जब ये सब कुछ मुकम्मल हो जाता है तो फिर वो आगे बढ़ते हैं और इस हकीकत में दाखिल हो जाते हैं, उस बातनी सच्चाई और आलम तख़य्युल की गहराई में, जो दरअसल जहन्नम की असल हकीकत है। तो एक इंसान के लिए यौम क़यामत जिस्मानी जिहत से आलम तख़य्युल की गहराइयों तक का सफ़र है। वहां इंसान सफ़र करता है।
वो मरहला जो अभी तय हो रहा है वही लम्हा है जब अचानक उसकी सारी हिस्सियात उससे छीन ली जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं। यानी देखने की सलाहियत का मरहला, सुनना, सूंघना, ये सब मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं। यहां इंसान इस मरहले में दाखिल होता है जिसे मिसाल के तौर पर कब्र की पहली रात कहा जाता है। वहां सबसे पहले कदम पर जब वो आलम तखय्युल में दाखिल होता है तो सबसे पहली चीज जिससे वो सामना करता है वो उसके अपने अंदर होती है, बाहर नहीं। उस सफर के इब्तदाई मरहले का मतलब ये नहीं कि वो जिस्मानी कब्र में दोबारा जिंदा हो रहा है या इस तरह की कोई बात हो रही है। बिल्कुल उसी पहले कदम पर जब इंसान पूरी तरह अपने अंदरूनी तखय्युल की वसी दुनिया में दाखिल होता है तो यही वो मखसूस मरहला है जिसे कब्र में सवाल जवाब कहा जाता है। वहां तखय्युल की सलाहियत बड़ी बारीकी से इंसान के सारी जिंदगी के अमाल को तरतीब देती है और बदलती है, और बुनियादी अकायद को ठोस शक्लों में दो अलग रास्तों में ढाल देती है। यकीनन दो फरिश्ते हैं, इसमें कोई शक नहीं। उस सवाल के लिए दो फरिश्ते आते हैं, लेकिन ये फरिश्ते जो शक्ल इख्तियार करते हैं, चूंकि फरिश्तों की बजात खुद कोई जिस्मानी शक्ल नहीं है, ये एक किस्म का मजहर है जो खुद तखय्युल की दुनिया ने तख्लीक किया है। अगर किसी शख्स का अकीदा अगर लिहाजा मिसाल के तौर पर कोई देख सकता है कि दो लोग या तो खूबसूरत चेहरों के साथ या खौफनाक सूरतों के साथ दाखिल हुए हैं और वहां वो सवालात करने लगते हैं, जैसे कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा मजहब क्या है, और इसी तरह के सवालात। ये बहुत पहला कदम है। ये वो सबसे पहला कदम है जो इंसान आलम तखय्युल में दाखिल होते वक्त उठाता है। उस पहले कदम को कब्र की पहली रात कहा जाता है। इस बात को अच्छी तरह समझ ले, या कब्र से मुराद जिस्मानी कब्र नहीं है और ना ही इससे मुराद ये ज़मीनी कब्र। जिस कब्र का जिक्र किया जाता है उससे मुराद दरअसल आलम बरज़ख है। आलम बरज़ख ही दरअसल आलम कब्र है, क्योंकि जैसा कि हमें रिवायात में बताया गया है, जो कुछ कब्र में होता है वो कब्र खुद कोई ख़ास चीज़ नहीं है। आखिरकार ये तो बस एक गड़ा है जिसे खोदा जाता है, इसमें इंसान को रखा जाता है और मिट्टी से ढांप दिया जाता है। बस इतना ही है, सब कुछ खत्म हो जाता है। वहां कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। ये जो कहा जाता है कि कब्र या तो जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग है, ऐसा नहीं है। बस उस पर मिट्टी डाल दी जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। दरअसल आहिस्ता आहिस्ता जिस कब्र का जिक्र किया जाता है, यानी आलम बरज़ख, वो इंसान के लिए अपनी तखय्युल की गहराइयों की तरफ बढ़ने का पहला कदम है। तो फिर कब्र का असल मतलब क्या है? कब्र का मतलब है वो चीज जो उसके नीचे छुप जाती है। कब्र खुद इस चीज को कहते हैं जो ढांप ले। कोई चीज जो किसी और चीज को छुपा ले उसी को कब्र कहते हैं। उसे कब्र इसलिए कहते हैं कि ये जिस्म को ढांप लेती है। आलम बरज़ख को भी आलम कब्र इसलिए कहते हैं कि वो छुपा हुआ है। अभी जब कोई मर जाता है तो हमें असल में नजर नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है या वो किस हाल से गुजर रहा है। इस लिहाज से आलम कब्र यानी आलम बरज़ख दरअसल इंसान की क़ुव्वत तख़य्युल है, लेकिन इसके मुख्तलिफ दर्जे हैं। वो गहरे और अमीक दर्जे नहीं जिनका मैंने जिक्र किया था। तख़य्युल की दुनिया तक पहुंचने के लिए हमारे सामने 3 मरहले हैं। पहला मरहला आलम कब्र कहलाता है जो कि बरज़ख है। दूसरा मरहला आलम मकामात कहलाता है और तीसरा मरहला या तो जन्नत है या जहन्नम। तो इंसान की क़ुव्वत तख़य्युल के ये 3 दर्जे हैं। उन्हें पहले इस इब्तिदाई मरहले में आना होगा। पहला मरहला वही आलम बरज़ख है या ये आलम कब्र भी हो सकता है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, ये दोनों बुनियादी तौर पर एक ही हैं। आलम कब्र या आलम बरज़ख दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि ये एक पोशीदा दुनिया है जिसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं, हमारा इस पर कोई इल्म नहीं है। सबसे पहला कदम जो इंसान उठाता है वो उस मरहला बरज़ख में दाखिल होना है, यानी वो अपनी ही दुनिया तख़य्युल में दाखिल हो जाता है।
यकीनन अगर हम ज्यादा वजाहत से बात करें तो कहेंगे कि तखय्युल की दुनिया के मजीद 4 दर्जे हैं। ये दर्जा वो नहीं है जिससे हम इस दुनिया में वास्ता रखते हैं, जैसा कि मैं पहले आपको समझा चुका हूं। जो कुछ हम इस वक्त देख रहे हैं वो दरअसल कुव्वत तखय्युल में ही नक्श हो रहा है। उस वक्त जब मैं आपको देख रहा हूं तो हकीकत में मैं आपको नहीं देख रहा, बल्कि अपनी ही दुनिया तखय्युल को देख रहा हूं। ये मेरी कुव्वत तखय्युल ही है जिसने ये तस्वीर, ये जगह तख्लीक की है और आपको और बाकी सबको नक्श किया है। जब मैं अपनी ही दुनिया तखय्युल को देखता हूं तो मुझे समझ आता है कि आप यहां मौजूद हैं और इस वक्त मैं हकीकत में आपको नहीं देख रहा हूं। हम सब अपनी अपनी दुनिया तखय्युल में हैं। ये कुव्वत तखय्युल ही है। आप हकीकत में मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं। जब मेरी आवाज आपके फोन तक पहुंचती है तो ये आपकी तखय्युल है जो मेरी आवाज जैसी कोई चीज तख्लीक करती है। आप वही आवाज सुन रहे हैं। हकीकत में आप मेरी असल आवाज नहीं सुन रहे हैं। उस वक्त जो कुछ भी हम देखते हैं, यहां तक कि जब आप खाना मुंह में डालते हैं तो आप उसका जायका बराह रास्त महसूस नहीं कर सकते। हकीकत में ये कुव्वत तखय्युल ही है जो इस जायके की तस्वीर अपनी दुनिया में बनाती है और इस तस्वीर का शऊर हासिल करके आप जायके को समझते हैं। इसी तरह आपको पता चलता है कि आपकी जबान पर कोई चीज मीठी है, खट्टी है, नमकीन है या कड़वी है। या मिसाल के तौर पर अगर इस मस्जिद की हवा इस वक्त गर्म है तो मैं ये गर्मी हकीकत में बराह रास्त अपनी जिल्द पर महसूस नहीं करता। ये कुछ और है। गर्मी मेरी जिल्द को छूती है और वहां से ये अपनी मंजिल तक मुंतकिल हो जाती है। दिमाग कुव्वत तखय्युल से जुड़ा हुआ है। कुव्वत तखय्युल गर्मी की तस्वीर बनाती है और फिर मुझे शऊर होता है कि यहाँ गर्मी है। जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुव्वत तखय्युल और शऊर के अंदर है और यही आलम तखय्युल का पहला मरहला है। जहां मैं इस दुनिया में रहता हूं उसी सतह की तखय्युल के साथ और मैं उसी तखय्युल के अंदर जी रहा हूं। ये इसका पहला मरहला है। ताहम होता यह है कि आलम तखय्युल की ये पहली सतह बराह रास्त 5 हवास से जुड़ी हुई है। यानी मैं देखता हूं और कुव्वत तखय्युल मेरे देखे हुए की बुनियाद पर एक तस्वीर बनाती है। मैं सुनता हूं और कुव्वत तखय्युल मेरे सुने हुए की एक तस्वीर बनाती है। मैं सूंघता हूं। कुव्वत तखय्युल उन्हीं हवास की अपने दायरे में उसी तरह तस्वीर बनाती है। जब यह कुव्वत काम करना बंद कर देती है तो मेरे तखय्युल की दुनिया को शक्ल देने का वो मरहला भी जारी नहीं रहता। यानी इस वक्त मेरी कुव्वत तखय्युल उन तासुरात के मुताबिक है जो मुझे 5 हवास से मिलते हैं। ये तस्वीरें बनाती रहती है, तस्वीरें बनाती रहती है। जब मौत वाक़ होती है, मौत का मतलब है हिस्सी और ज़ाहिरी तासुरात का ख़त्म हो जाना, तो फिर ये सतह तखय्युल अब काम नहीं करता। यहां हम आलम तखय्युल की दूसरी सतह में दाखिल होते हैं। हम इस सतह को आलम कब्र या आलम दरज़ख कहते हैं। यह फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो यहां क्या होता है? यहां इंसान एक कमज़ोर हालत में उठा है। और देखें, इस दुनिया में हम जो भी अमल करते हैं, जो भी किरदार की सिफत है, जो भी अकीदा हम रखते हैं, अगर कोई जुल्म करता है तो वो आग की सूरत में जाहिर होता है। अगर कोई खुदा ना करे सूद खोरी करता है तो वो भी आग की सूरत में जाहिर होता है। अगर कोई मिसाल के तौर पे गंदी जबान इस्तेमाल करता है तो वो बिच्छू की सूरत में जाहिर होता है। जब कोई किसी को बुरा भला कहता है तो ये उसके दिल पर डंक की तरह होता है और ये बिच्छू की शक्ल में नजर आता है। जब कोई कुरान की तिलावत करता है तो वो रोशनी या खूबसूरत फरिश्ते की सूरत में जाहिर होती है। जब कोई इल्म हासिल करता है, जब वो तौहीद का इल्म सीखता है तो वो दूध या शहद की शक्ल में जाहिर होता है। यानी ये तमाम चीज़ें जो हम कर रहे हैं, इल्म, तरतीब, हत्ता कि तखय्युल भी, हम मुसलसल रोशनी की तरह तसव्वुर कर रहे हैं और ये सब कुछ कवानीन की गहराइयों में जमा है। कबर नेमत या आग?
बाजार एक पेश नज़र, वो बरज़ख में आग करीब आती है और फिर चली जाती है। आलम बरज़ख में फासिक असल में जहन्नम में नहीं है। बरज़ख का जहन्नम असल जहन्नम नहीं है। बरज़ख की दुनिया ज़्यादा सख्त नहीं है। क्यों? क्योंकि आलम बरज़ख में इंसान ने अभी तक दुनियावी ज़िंदगी से अपना ताल्लुक मुकम्मल तौर पर नहीं तोड़ा होता। अब अगर आप गौर से देखें तो हम सब अपनी ज़ात के अंदर इस दुनिया में रहते हुए भी अपनी जन्नत और जहन्नम अपने अंदर लिए फिरते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बाद में क़यामत के दिन जाएंगे। नहीं, जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आपके लिए आयत पढ़ी थी, हम इंसान इस दुनिया में भी अपनी जन्नत या अपनी जहन्नुम को अपने साथ अपने क़ुव्वत तख़य्युल में लिए फिरते हैं। मेरी जन्नत या मेरी जहन्नम मेरे अंदर है, लेकिन मुझे इसका बिल्कुल एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरी तवज्जो उस दुनिया पर है। ना मैं अपनी जन्नत को महसूस करता हूँ और ना अपनी जहन्नम को। आप भी इसे वैसे महसूस नहीं करते जैसे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक इस दुनिया से ताल्लुक बाकी है। जितना कोई इस दुनिया से वाबस्ता रहता है वो उस आलम को हकीकत में महसूस नहीं कर पाता। इसीलिए कहा जाता है कि महामेड एक दिन के लिए जन्नत के बाग की मानंद है। ये छोटा सा बाग है, ये एक निहायत ही छोटा सा बाग है। या मसलन ये गड्ढों में से एक गड्ढा है। वो जहन्नम के गड्ढे और गहरी वादियां, ये तो बस एक छोटा सा गड्ढा है। गड्ढा क्या है? मिसाल के तौर पे गड्ढा एक छोटा सा सुराख होता है। मिसाल के तौर पे ये ऐसा क्यों है? इसका मतलब ये है कि इंसान बरज़ख की दुनिया में अपनी जन्नत या जहन्नुम की असल हकीकत को पूरी तरह नहीं समझ पाता, क्योंकि उसकी तवज्जो अभी तक उस जगह उस दुनिया पर है। यही चीज़ बरज़ख की दुनिया बन जाती है। जब इंसान मर जाता है और उसके इदराक मुनक़ता हो जाते हैं तो वो पहले मरहले में दाखिल होता है जो उसकी बरज़ख की दुनिया है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, उस मरहले में लोग ऐसे होते हैं जैसे वो कोमा में चले गए हों या शक की हालत में मुब्तला हो गए हों। मौत इस दुनिया से तमाम रिश्तों के मुकम्मल तौर पर मुनक़ता होने को जाहिर करती है। ज्यादातर लोग जब मरते हैं तो वो इस दुनिया से अपना ताल्लुक मुकम्मल तौर पर नहीं तोड़ते। इसका मतलब है कि उनकी मौत मुकम्मल मौत नहीं होती। वो अब भी अपने खानदान की फिक्र में रह गए हैं। वो नहीं चाहता कि उसके माल, उसकी दौलत या उसकी जिंदगी में से कुछ भी जाया हो जाए। अब भी जबकि वो मर चुका है, उसका जहन अभी तक उसी दुनिया में लगा हुआ है। वो कहता है, मैंने उसे ख्वाब में देखा और उसने मुझे कहा, मेरा बाग मत बेचना, इसे मत बेचना। लोग कहते हैं कि वो इससे इतना वाबस्ता था। बस यही हाल है। वो कहते हैं कि इसका जहन अभी तक उसी दुनिया में है। ये मौत मुकम्मल मौत नहीं है। ये सच है कि वो मर चुका है और अब तो उसे कब्र में भी उतार दिया गया है, लेकिन उसका जहन अभी तक इसी दुनिया में लगा हुआ है। अगर उसके बच्चे उसकी जायदाद पर हाथ साफ करने लगें और उसे लेना शुरू कर दें तो उस शख्स का अजाब यहां से भी ज्यादा है। वो वाकई तकलीफ में है। तो ये शख्स अपनी ख्याली दुनिया में जहां वो रहता है वो भी अभी तक उसी दुनिया में जी रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने उस दुनिया से अपना ताल्लुक मुकम्मल तौर पर तोड़ लिया हो। वो चला गया है, लेकिन अपनी इस ख्याली दुनिया में वो अब भी खुद को देखता है। वो जिंदा रहता है और मुझे तवक्को करनी चाहिए कि इस दुनिया में भी यही हाल है। लिहाजा ये शख्स, जाहिर है, ये हर फर्द पर मुनहसिर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरे इंसान थे। ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिनकी बुराई उनकी अच्छाई पर गालिब थी।
ये मजबूत लोग जब वो इस वसी दुनिया में भटकते हैं तो अब वो ऐसे कैदियों की तरह हैं जो आसानी से इस दुनिया में दाखिल नहीं हो सकते, या अगर आ भी जाएं तो गंदी जगहों पर जा पहुंचते हैं। जिन लोगों की बुराई उनकी खुशी पर गालिब आ गई, वो कैदियों की तरह बंजर तपते हुए सहराओं और इसी तरह की जगहों में भटकते रहते हैं। उसके बरक्स अगर कोई शख्स नेक हो और उसकी नेकी उसके गुनाहों पर गालिब हो, तो जब वो आज़ाद होता है, अगरचे वो हमेशा आज़ाद नहीं रहता, तो वो ज़्यादातर मस्जिदों में जाता है या इल्म व तौहीद की महफिलों में, या वो महफिलें जो अबा अब्दुल्ला की इज्जत में मुनक़िद होती हैं। ये वो मकामात है जहाँ वो अक्सर जाते हैं और जहाँ वो मौजूद होते हैं, वो मस्जिदों में जाते हैं। यकीनन ये हालात पर मुनहसर है, हर एक मुख्तलिफ है, हर कोई इस मकाम में दाखिल नहीं हो सकता। सिर्फ चंद लोग ही मखसूस औकात में दाखिल हो सकते हैं। जब वो दाखिल होते हैं तो मामला मुख्तलिफ होता है। तो तनासुब, नेकी, बदी और वो मकामात जहां वो जाते हैं सब फर्क डालते हैं। कुछ लोग इससे फायदा उठाने के लिए और भी काम करते हैं। जो लोग पाक हैं और जो नहीं हैं, उनके दरमियान फर्क क्या है, वो क्या करते हैं, ये खसूसियात उन्हें खास तरीके से अमल करने पर मजबूर करती हैं और हम उन्हें कुछ निशानियों से पहचान सकते हैं, जैसा कि लातीनी में कहा जाता है, ताकि हम उनकी शनाख्त कर सकें। बदकार अक्सर खुश्क सहराओं, गंदे कूड़े के ढेरों या पुराने गंदे और तारीख हमामों में जा पहुंचते हैं। उन जगहों पर वो वहां जाहिर होते हैं जहां बहुत ज्यादा गुनाह किए जाते हैं, ऐसी जगहें जो अंदर से गोया जहन्नुम की मानंद होती हैं। उसके बरक्स खुशनसीब लोग मस्जिदों में या बाबरकत दिनों में पाए जाते हैं। वो उन जगहों पर होते हैं जहां रोशनी बहुत ज्यादा होती है, बरखिलाफ उन जगहों के जहां तारीकी गालिब हो। इसी तरह मिसाल के तौर पर इस दुनिया में मस्जिदें वो जगहें हैं जहां रोशनी बहुत ज्यादा होती है, या मिसाल के तौर पर शराब खाना वो जगह है जहां तारीकी गैर मामूली तौर पर ताकतवर होती है। वो जगह जहां गुनाह और फसाद होता है, वहां तारीकी बहुत ज्यादा होती है। ये वो किस्म की जगह हैं जहां उमूमन वो लोग आते हैं जो मर चुके हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं मरे, जिनका इस दुनिया से अभी कुछ ताल्लुक बाकी है। ये लोग आकर ऐसी जगहों में दाखिल होते हैं, वहां नजर आते हैं और इन महफिलों से फायदा उठाते हैं। जी हाँ, बहरहाल हालात के मुताबिक अमूमन वो लोग जिनकी तकमील मुकम्मल नहीं हुई, उनके लिए एक बरज़ख होता है, यानी इस दुनिया और आखिरत के दरमियान एक दरमियानी हालत। जिनकी तकमील मुकम्मल नहीं हुई, यानी जिनकी वजूदी सलाहियत मजबूत है लेकिन इस दुनिया में वो अपनी तकमील तक नहीं पहुंच सके, यानी उनकी वजूदी सलाहियत चाहे खुशी के लिए हो या बदबख्ती के लिए बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोगों के लिए इस दुनिया में अपनी असल तकमील तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि किसी में तौहीद की तकमीलात सीखने की सलाहियत थी लेकिन उसके पास उस्ताद नहीं था या उसे सीखने के मौके मयस्सर नहीं आए। ऐसे मामलात, या मसलन उसमें सलूक या इसी तरह की चीज़ों का हुनर था लेकिन हालात उसके लिए साजगार नहीं थे, माहौल उनके लिए मुनासिब नहीं था। जब ऐसे लोग मर जाते हैं तो वो ऐसी महफिलों में दाखिल होते हैं, वो महफिलों में शरीक होते हैं, और अगर उन्हें अपनी मुनासबत की महफिलें मिल जाएं तो वो वहाँ जाते हैं ताकि अपनी तकमील हासिल करें। मिसाल के तौर पर अगर किसी में तौहीद की हकीकतों की तकमीलात सीखने की सलाहियत है तो अगर कोई तौहीदी महफिल मुनक्किद हो रही हो तो वो यहाँ आते हैं और उसमें शरीक होते हैं और सीखते हैं। इसके अलावा इसी आलम बरज़ख में ऐसी महफिलें भी मौजूद हैं और वो उनमें शरीक होते हैं। उन दुनियाओं में भी इमाम हुसैन की मजालिस अज़ा मुनक्कद होती हैं। उनकी बातनी हकीकतों में जिनमें वो दाखिल होते हैं, ये महफिलें वहाँ मौजूद होती हैं। बातनी हकीकतें रूहों को रूहानी महफिलों के जरिए आपस में जोड़ती हैं, हत्ता के आलम बरज़ख में भी। फिलहाल हम मस्जिद में मौजूद लोगों से जुदा हैं। जब इंसान मर जाता है तो लोगों के तसव्वुरात यकजा हो जाते हैं।